مدنی بلٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی نے ملاقات کی۔ ملکی مجموعی داخلی سلامتی، امن و امان کی صورتحال، انسداد دہشت گردی کے اقدامات اور سیکیورٹی کے اہم امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے وزیر اعظم کو ملک میں امن و امان کی موجودہ صورتحال اور وفاقی وزارت داخلہ کی جانب سے کیے گئے اقدامات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر داخلہ اور ان کی ٹیم کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے ہدایت دی کہ شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مربوط اور مؤثر اقدامات جاری رکھے جائیں۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ عوام کے جان و مال کا تحفظ، قانون کی بالادستی اور دہشت گردی کا مکمل خاتمہ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف سے اہم ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم نے پارٹی سربراہ کو دورہ ملیشیا سے آگاہ کیا اور دورہ مصر سے متعلق رہنمائی دی۔ پاک افغان کشیدگی، ملکی سیاسی و معاشی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذاتی عمرہ میں ہونے والی ملاقات میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی شریک ہوئے۔ وزیر اعظم نے نواز شریف کو اپنے حالیہ دورہ ملائیشیا سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم کا نیک خواہشات کا پیغام بھی پہنچایا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان دو طرفہ تعلقات، خصوصاً اقتصادی تعاون، نئی بلندیوں کو چھو رہے ہیں۔ ملاقات میں وزیر اعظم نے اپنے آئندہ دورہ مصر کے حوالے سے بھی آگاہ کیا۔ افغانستان کی جانب سے حالیہ اشتعال انگیزی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ افغان اشتعال کے جواب میں پاک افواج کا مؤثر اور بھرپور رد عمل قابل تحسین ہے۔ ملک کے دفاع کے لیے پوری قوم پاک افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ پاک سعودی جوائنٹ بزنس کونسل کے وفد کی آمد کے معاشی ثمرات، وزیر اعلیٰ کی کاوشوں سے سعودی سرمایہ کاری کے لیے تاریخی ایم او یو۔ بادشاہی مسجد کے عالمگیری گیٹ کے سامنے پاک سعودی ایم او یو پر دستخط کی پروقار تقریب ہوئی۔ مریم نواز اور شہزادہ منصور بن محمد بن سعد السعود کی موجودگی میں دستخط کیے گئے۔ بادشاہی مسجد کے عالمگیری گیٹ کے سامنے پاک سعودی ایم او یو پر دستخط کی پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور چیئرمین پاک سعودی جوائنٹ بزنس کونسل شہزادہ منصور بن محمد بن سعد آل سعود کی موجودگی میں قرارداد مفاہمت پر دستخط کیے گئے۔ تقریب کے دوران سعودی سرمایہ کاروں نے پنجاب میں 7 بڑے سیکٹرز میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ سعودی سرمایہ کاری کے نمایاں شعبہ جات میں اسپیشل اکنامک زونز، انڈسٹریل زونز، ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ، ہوٹل انڈسٹری، ہاسپٹیلٹی، ہیلتھ کیئر، انفراسٹرکچر اور جوائنٹ وینچر منصوبے شامل ہیں۔ مائنز اینڈ منرل، ٹرانسپورٹ اور لاجسٹکس سیکٹرز، ایگریکلچر، لائیو اسٹاک اور ایکوا کلچر کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، حکومت پنجاب سعودی سرمایہ کاروں کو مکمل سہولتیں اور معاونت فراہم کرے گی۔ پنجاب سرمایہ کاری کے لیے بہترین مقام ہے۔ ہمارا ہدف صوبے کو انڈسٹریل ہب بنانا ہے۔ پنجاب کے قدرتی اور معدنی وسائل اصل معاشی خزانہ ہیں۔ ہم ان وسائل سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ پاک سعودی جوائنٹ بزنس کونسل کے وفد نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کے معاشی ویژن پر مکمل اطمینان اور اعتماد کا اظہار کیا۔ حکومت پنجاب نے فیصلہ کیا ہے، سعودی سرمایہ کاری کے معاہدے کو فوری عملی شکل دینے کے لیے روایتی ٹائم لائن کے بجائے فاسٹ ٹریک میکانزم اپنایا جائے گا۔ ایک فوکل ایجنسی سعودی سرمایہ کاروں اور کمپنیوں کے ساتھ رابطہ اور معاونت فراہم کرے گی۔ پنجاب کابینہ میں بالآخر توسیع کا فیصلہ کر لیا گیا۔ سابق اسپیکر رانا محمد اقبال اور منشا اللہ بٹ بطور صوبائی وزیر حلف اٹھائیں گے۔ رکن قومی اسمبلی انوش رحمان کو سینئر ایڈوائزر مقرر کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق سابق اسپیکر پنجاب اسمبلی رانا محمد اقبال اور منشا اللہ بٹ صوبائی وزراء کے طور پر حلف اٹھائیں گے۔ رکن قومی اسمبلی انوشا رحمان کو وزیر اعلیٰ پنجاب کی سینئر ایڈوائزر مقرر کیا گیا ہے۔ انوشا رحمان بطور سینئر ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر پنجاب خدمات سر انجام دیں گی۔ پنجاب کابینہ کے دونوں نئے وزراء کی تقریب حلف برداری آج شام 4 بجے گورنر ہاؤس لاہور میں منعقد ہوگی۔ شہر میں گرا فروش مافیا کا راج برقرار ہے۔ سرکاری ریٹ لسٹیں نظر انداز، بڑالہ کی گوشت کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ چکن کا گوشت مزید 7 روپے کلو مہنگا، انڈے 315 روپے درجن پر برقرار، سبزیاں اور پھل بھی مہنگے ہو گئے۔ ٹماٹر پر 500 روپے فی کلو اضافی وصول کیے جانے لگے۔ برائلر مرغی کا گوشت 7 روپے فی کلو مہنگا ہو گیا۔ مارکیٹ کمیٹی نے برائلر مرغی کا پرچون ریٹ
468 रुपए किलो मुकर्रर किया। शहर में ब्रायलर गोश्त की फरोख्त में ओवर चार्जिंग का सिलसिला जारी है। फार्म रेट जिंदा ब्रायलर 295, होलसेल 309, परचून 323 रुपए जारी किया गया। अंडों का रेट 315 रुपए फी दर्जन बरकरार है। शहर में इंतजामिया सिर्फ रेट लिस्टें लगाने तक महदूद है, अमल दरामद कहीं नजर नहीं आता। टमाटर की सरकारी कीमत 170 रुपए फी किलो मुकर्रर, मगर बाजार में 700 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। आलू 85 के बजाय 100, प्याज 85 की बजाय 110 रुपए में दस्तयाब है। लहसुन देसी 220 की बजाय 260, अदरक चाइना 530 की बजाय 600 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। मटर 390 के बजाय 430, करेला 140 के बजाय 190, टिंडे 205 के बजाय 240 और मेथी 200 के बजाय 240 रुपए किलो में दस्तयाब है। फल भी 30 से 50 रुपए इजाफे के साथ बेचे जा रहे हैं। सेब 180 के बजाय 250, अंगूर 240 के बजाय 300, अमरूद 210 के बजाय 270 रुपए किलो और केला 150 के बजाय 250 रुपए दर्जन में फरोख्त हो रहा है। बिजली चोरों से वाजिबात की वसूलियों का ये मामला है। लेस्को को 1 अरब 35 करोड़ रुपए का खसारा होने का इंकशाफ हुआ है। कंपनी 26,000 से ज्यादा बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा कर भी वाजिबात वसूल नहीं कर सकी। ऑडिटर जनरल ने रिकवरी कीमत में नुकसानात पर मबनी रिपोर्ट जारी कर दी है। लेस्को की MNT और S&I के रिकॉर्ड पर रिपोर्ट तैयार की गई है। लेस्को को बिजली चोरों से वाजिबात और डिटेक्शन बिल्स की वसूलियों की मद में 1 अरब 35 करोड़ रुपए का खसारा होने का इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी 26,000 से जायद बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवा कर वाजिबात वसूल न कर सकी। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने रिकवरी कीमत में नुकसानात पर मबनी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक लेस्को ने 2 साल के दौरान बिजली चोरों से वाजिबात की वसूली को यकीनी नहीं बनाया। बिजली चोरों के खिलाफ इल्जामात को साबित करके वाजिबात की रिकवरी नहीं हुई। लेस्को में डायरेक्ट सप्लाई, मीटर टेम्परिंग समेत दीगर तरीकों से बिजली चोरी की गई। लेस्को की मॉनिटरिंग एंड टेस्टिंग, सर्वेलेंस एंड इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट पर रिकॉर्ड मुरतब किया गया। लाहौर एयरपोर्ट पर तैयारों में कमी और दीगर फनी वजूहात अंदरून और बैरून 8 प्रवासें मनसूख कर दी गईं। टोरंटो जाने वाली कौमी एयर की परवास PK797, कराची से लाहौर आने वाली परवास PK302 मनसूख की गई। शारजाह, जद्दा, कराची की परवास से भी उड़ान नहीं भर सकी। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लाहौर एयरपोर्ट पर तैयारों में कमी और दीगर फनी वजूहात की वजह से बैरून और अंदरून मुल्क आने और जाने वाली 8 परवासें मनसूख की गई। लाहौर से टोरंटो जाने वाली कौमी एयर की परवास PK797 मनसूख की गई। कराची से लाहौर आने वाली परवास PK302 मनसूख। लाहौर से कराची जाने वाली PIA की परवास PK303 मनसूख की गई। लाहौर से जद्दा जाने वाली फ्लाइट चीना की परवास 9P586 मनसूख। शारजाह से लाहौर आने वाली एयर ब्लू की परवास PA413 मनसूख की गई। शारजाह से लाहौर आने वाली फ्लाइट चीना की परवास 9P501 मनसूख की गई। स्कर्दू से लाहौर आने वाली परवास PA480 मनसूख। कराची से लाहौर आने वाली परवास PK306 मनसूख कर दी गई। रेलवे इंतजामिया की नाक़िस हिकमत अमली और नहली ट्रेन हादसा की रोकथाम के लिए कोई लाएमल तय न हो सका। रवां साल ट्रेन हादसा में इजाफा रिकॉर्ड, रवां साल 9 माह और 10 दिन में 88 हादसा रिकॉर्ड किए गए। रेलवे इंतजामिया की नाकिस हिकमत अमली और नाअहली के बाइस ट्रेन हादिसात की रोकथाम के लिए कोई लाहे अमल तय न हो सका। रवां साल ट्रेन हादिसात में इजाफा हो गया। रवां साल 9 माह और 10 दिन में 88 ट्रैफिक हादिसात रिकॉर्ड हुए। ट्रैक की खस्ता हाली, बोगियों और सिग्नल सिस्टम में खराबी हादिसात की वजह करार दी गई। मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियों के पटरी से उतरने के 80 वाकयात पेश आए। सबसे ज्यादा कराची डिवीजन में 23 हादिसात रिकॉर्ड हुए। जराये के मुताबिक स्टाफ की गफलत के बाइस 23 हादिसात हुए। ट्रैक खराबी के बाइस 22 हादिसात हुए। रोलिंग स्टॉक के बाइस 18 हादिसात हुए। तकरीबकारी 4 और सिग्नल खराबी से 2 हादिसात हुए। हादिसात में 2 मुसाफिर जाँ बहक और 40 जख्मी हुए। 31 हादिसात की इंक्वायरी ताहाल ना हो सकी। सैलाब से मुतासरा ट्रैक के बाइस लाहौर आने और जाने वाली ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर हुआ। लाहौर से कराची जाने वाली शाह हुसैन एक्सप्रेस मनसूख कर दी गई। पाक बिजनेस एक्सप्रेस कराची 2 घंटे 45 मिनट ताखीर का शिकार रही। कराची एक्सप्रेस कराची 45 मिनट ताखीर का शिकार रही। ग्रीन लाइन कराची के लिए मुकर्ररा
وقت پر لاہور سے روانہ ہوئی۔ قراقرم لاہور سے براستہ ساہیوال کراچی گئی۔ پاکستان ایکسپریس براستہ لاہور ساہیوال کراچی گئی۔ رحمان بابا ایکسپریس براستہ لاہور ساہیوال کراچی گئی۔ پاکستان ایکسپریس براستہ ساہیوال لاہور راولپنڈی گئی۔ رحمان بابا ایکسپریس براستہ لاہور ساہیوال پشاور گئی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسی رضا کی زیر صدارت لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام پر اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں MCL، نسپاک سمیت تمام محکموں کے نمائندگان نے شرکت کی۔ متعلقہ محکموں کے نمائندگان نے ڈپٹی کمشنر لاہور کو منصوبوں کی پیش رفت پر تفصیلی بریفنگ دی۔ منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے تمام متعلقہ محکموں کے افسران کی اجلاس میں شرکت۔ DC لاہور نے کہا ترقیاتی منصوبوں میں شفافیت، کوالٹی اور بروقت تکمیل کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ واسطہ کے ڈرین اور واٹر سپلائی کے منصوبوں پر کام تیزی سے جاری ہے۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 2 کی اسکیموں پر مختلف مراحل میں کام کا آغاز کر دیا گیا ہے اور نسپاک تعمیراتی کاموں کے اعلیٰ معیار کو ہر صورت یقینی بنائے۔ تعمیراتی کاموں میں شفافیت کو 100% یقینی بنایا جائے۔ MPA ملک شہباز علی کھوکھر نے PP 162 ستو قتلہ کا دورہ کیا۔ سیوریج، واٹر سپلائی اور ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ MPA ملک شہباز علی کھوکھر نے حلقے کے معززین سے ملاقات کی اور علاقے کے مسائل پر تفصیلی گفتگو کی۔ اس موقع پر محمد عمر کھوکھر، ملک فیصل اشرف کھوکھر، ایکسین واسطہ جوہر ٹاؤن فیضان امتیاز، ملک عدیل انور کھوکھر، ملک عارف، ملک اسلم، ملک اون کھوکھر اور ملک متین کھوکھر بھی موجود تھے۔ عوامی نمائندے نے یقین دہانی کروائی کہ تمام مسائل کے حل کے لیے اقدامات تیزی سے جاری ہیں۔ وزیراعظم کے پولیٹیکل سیکرٹری مراد خان کی رہائش گاہ پر سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیات کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ ان کے والد نذیر خان سواتی کے انتقال پر اظہار افسوس کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار حیات صادق سمیت وفاقی اور صوبائی وزراء سمیت دیگر نے تعزیت کی۔ وزیر اعظم کے پولیٹیکل سیکرٹری مراد خان کی رہائش گاہ پر وفاقی وزیر برائے قومی غذائی تحفظ رانا تنویر حسین گئے اور ان کے والد نذیر خان سواتی کے انتقال پر تعزیت کی۔ وزیر مملکت بلال کیانی، سینئر رہنما پرویز رشید، وزیر اعظم کے معاون خصوصی اون چودھری، وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر شزرا منصب نے بھی شرکت کی۔ MNA روبینہ خورشید، MPA رانا فیاض، احد چیمہ، سیدہ نوشین افتخار، سردار خضر مزاری، PSO2 وزیر اعظم ڈاکٹر انس نے اظہار خیال کیا۔ سینئر صحافی نجم ولی خان، عمر اسلم، راؤ دلشاد حسین، لیگی رہنما میاں اسلم سلیم، تارا بٹ اور علی سرور گیلانی بھی موجود تھے۔ ممبر قومی اسمبلی شائستہ پرویز ملک، وفاقی وزیر علی پرویز ملک اور صوبائی وزیر فیصل ایوب کھوکھر نے کہا کہ نذیر خان سواتی مخلص اور درویش صفت انسان تھے، ان کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ یہ خاندان کا نقصان نہیں ہوا، دیکھیں خاندان تو ان کے بیٹے بیٹیاں بیوی ان کا جو نقصان ہوا ہے سو ہوا ہے، لیکن پارٹی کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ پارٹی نے اپنا ایک بہت قیمتی اثاثہ کھویا ہے۔ حق اور سچ کی آواز اٹھاتے ہوئے اپنے ملک کی خدمت کرتے رہے، اسی جذبے کے ساتھ، اس بھائی کے ساتھ مل کے، کیونکہ یہ نقصان خالی اس کا نہیں ہوا، میرا بھی اتنا ہی نقصان ہوا اور یہ جو سارے ان کے چاہنے والے یہاں پہ کھڑے ہیں ان کا نقصان ہوا ہے۔ کوشش کریں گے کہ اس مقصد کو آگے لے کے چل سکیں اور ملک اور اپنے علاقے کی عزت بڑھا سکیں۔ یہ وہ لیڈرشپ تھی جو ہم سے آگے آگے ہوتی تھی، یہ وہ لیڈرشپ تھی جنہوں نے لاہور کو اس ٹائم پہ سنبھالا جب میاں نواز شریف صاحب کو سب سے زیادہ ضرورت تھی اور ان کے درینہ ساتھی تھے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان، گورنر بلوچستان شیخ جعفر مندوخیل، گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائنہ نے مراد خان کو ٹیلی فون کیا اور ان کے والد کے انتقال پر اظہار افسوس کیا۔ کیمرامین مقصود بٹ کے ساتھ ابو بکر شیخ، سٹی 42۔ چیئرپرسن پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی ہنا پرویز بٹ کی برطانوی ہائی کمیشن کے سیاسی مشیر مارک بیلی اور لاہور دفتر کے سربراہ بین وارنگٹن سے ملاقات۔ پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کے آئندہ منصوبوں، خواتین کے تحفظ، بااختیاری و فلاح و بہبود کے لیے جاری اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مارک بیلی اور بین وارنگٹن نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے وین خواتین کے لیے محفوظ پنجاب کو سراہتے ہوئے کہا کہ خواتین کی سلامتی اور فلاح کے لیے حکومت پنجاب کی کوششیں قابل تحسین ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے مؤثر اور پائیدار اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ آئندہ بھی خواتین کے تحفظ، بااختیاری اور فلاحی منصوبوں میں اشتراکی عمل کو مزید فروغ دیا جائے گا۔ ہنا پرویز بٹ نے برطانوی ہائی کمیشن کے تعاون اور دلچسپی کو سراہتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی رہنمائی میں ویمن پروٹیکشن اتھارٹی خواتین کے لیے محفوظ اور بااختیار معاشرہ قائم کرنے کے لیے مختلف منصوبوں پر کام کر رہی ہے۔
पंजाब एथलेटिक्स एसोसिएशन के इंतखाबात का मामला एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान हरकत में आ गई। आइन के मुनाफी इंतखाबात करवाने पर सलमान इकबाल भट्ट पर ताहयात और सेक्रेटरी हबीब शाह पर 10 साल की पाबंदी आयद कर दी। एथलेटिक्स फेडरेशन ने पंजाब एथलेटिक्स एसोसिएशन के गैर आईनी तरीके से इंतखाबात कराने पर सदर सलमान भट्ट और सेक्रेटरी पंजाब हबीब शाह के खिलाफ इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी, जिसने दोनों को अपना मौक़िफ़ सफाई पेश करने के लिए तलब किया, मगर दोनों कमेटी के सामने पेश ना हुए। कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में एग्जेक्टिव कमेटी ने सलमान इकबाल भट्ट पर ताहयात जबकि हबीब शाह पर 10 साल की पाबंदी लगा दी। लाहौर अजायब घर में शेखुपुरा के विरसे की खोज के उन्वान से तकरीब सेक्रेटरी साहब डॉक्टर एहसान भुट्टा ने खसूसी शिरकत की। तकरीब में मोहब्बत, कुर्बानी और जज्बों से लबरेज दास्तान हीर रांझा भी मरकज़े तवज्जो बनी। लाहौर अजायब घर में शेखुपुरा के विरसे की खोज के उन्वान से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डायरेक्टर आसार कदीमा इकबाल खान मंच, डायरेक्टर अजायब घर नबीला इरफान, डिप्टी डायरेक्टर आसिम रिजवान और साबिक डायरेक्टर आसार कदीमा मोहम्मद हसन शरीक हुए। सेक्रेटरी साहब डॉक्टर एहसान भुट्टा का कहना था कि हमारा मकसद इन विरसों को महफूज बनाकर नई नस्ल को उनकी पहचान से जोड़ना है। सीएम साहबा और सीनियर मिनिस्टर साहबा की डायरेक्शन के मुताबिक हमने ना 10 के करीब नए टूरिज्म हब क्रिएट कर रहे हैं। हब का मतलब यही है कि वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ ना हो बल्कि उस शहर को देखें, जिसमें शेखुपुरा नंबर 1 है, फिर गुजरांवाला है, सियालकोट है, हड़प्पा है, रावलपिंडी है, टैक्सला हो जाएगा, मुल्तान है, भावलपुर है। ये हमने ना 8-10 सिटीज़ में, तड़प है ये वहाँ पे अटक के अंदर, तो पूरे नॉर्थ से लेके साउथ तक तमाम सिटीज़ को हमने ढूंढा है। उसमें कौन कौन सी साइट हैं, ये 60 के करीब साइट्स हैं जिस पे हम ना तमाम हुकूमत पंजाब के महकमाजात काम कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा सैफुल इस्लाम ने कहा कि जिला इंतजामिया शेखुपुरा में मौजूद तारीखी विरसे की बहाली के लिए मुख्तलिफ इक़दामात कर रही है। टूरिज्म डिपार्टमेंट और जिला इंतजामिया की जो आपस में कोलैबोरेशन चल रही है शेखुपुरा को एज ए टूरिज्म हब रिवाइव करने के लिए बड़ी खुशाइंद एक एफर्ट है। 5 साइट से कंसेक्यूटिवली कलेक्टिवली जो है ये एक टूर पैकेज का हिस्सा बनाई जा सकती हैं, जहाँ पे हम डबल डेकर बस लेके जा सकें, लोग एक्सपीरियंस करें कि वहाँ पे कौन कौन से हिस्टोरिकल साइट्स हैं और उस एक्सपीरियंस को जो है यहाँ पे और लोगों को भी बुलाए ताकि हमारे पास जो टूरिज्म का जो फरोग उसको दे दिया जा सके। डायरेक्टर आसार कदीमा इकबाल खान मंच ने कहा, महकमा आसार कदीमा इन मकामात की बहाली और तहफ़्फ़ुज़ पर काम कर रहा है। आप एक तरफ कंजर्वेशन आप कर रहे होते हैं, बचा रहे होते हैं हेरिटेज, दूसरा लोगों को बुला रहे होते हैं और लोगों को बुलाने के लिए फिर आपको मुख्तलिफ डायमेंशंस पे काम करना पड़ता है और फिर कुछ ना कुछ ऐसी कशिश देना पड़ती है जिससे लोग उस मॉन्यूमेंट का, हेरिटेज का ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करें। उसके लिए फिर इस किस्म के प्रोग्राम्स हैं वो डोर ओपनिंग होते हैं, इन्फॉर्मेटिव होते हैं। क्लासिक गुलकारा आयशा नादिर ने वारिस शाह के कलाम को अपने दिल परेब आवाज में पेश करके हाज़रीन से खूब दाद समेटी। कैमरा टीम के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। यहाँ आपको बताएं कि DHA फेज 6 में अल-फतेह इलेक्ट्रॉनिक्स की जानिब से ग्रैंड सेल गाला का एहतमाम किया गया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर 50% तक सेल लगाई गई है। अल-फतेह इलेक्ट्रॉनिक्स की जानिब से ग्रैंड सेल गाला का एहतमाम किया गया है। तमाम होम अप्लायंसेस पर 50% सेल लगाई गई है। कस्टमर्स की जानिब से रायती कीमत पर खरीदारी का सिलसिला जारी है। शहरियों का कहना है कि ऐसी सेल कस्टमर्स को परेशानी से बचाती है। बगैर किसी बहस के चीज रायती कीमत पर मैसर होती है। ऐसे इनिशिएटिव लेने चाहिए क्योंकि जब हमने बल्क में शॉपिंग करनी होती है तो ये ज़्यादा हमारे लिए अफोर्डेबल भी है, फ़ायदेमंद भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक मशीन ली है, हमने अभी एक फूड प्रोसेसर लिया है, तो वी आर हैप्पी। बहुत अच्छा ऐसे इनिशिएटिव्स होने चाहिए ताकि आपको कहीं पे जाके, क्योंकि पूरा दिन ही निकल जाता है कहीं पे बार्गेन वगैरह करने में, अच्छे रेट्स लेने में, तो अगर आपको ऐसे रेट्स जो है वो इस तरह की ऑफर्स में मिल जाएं तो इट्स वेरी गुड। ब्रांच मैनेजर मोहम्मद आरिफ का कहना है कि सेल का मकसद कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा सहूलत फराहम करना है। हमारी कंप्लीट सेल है तभी सभी अप्लायंसेस में, आप स्मॉल अप्लायंसेस देखना चाहें, किचन अप्लायंसेस देखना चाहें, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED टीवीज, सभी प्रोडक्ट्स में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास स्पेशल प्राइसेस में ऑफर हैं जो कि अप टू 50% में है। हमारी जो ये प्रमोशन चल रही है ये 11 से लेकर 19 तक चलेगी और ये कंटिन्यू है। इस संडे भी हम ऑन है, नेक्स्ट संडे भी हम ऑन होंगे। मैं अपने कस्टमर से कहूँगा अल-फतेह पे ज़रूर विजिट करें, जो कि बाजार से महंगी चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं। अल-फतेह ने स्पेशल ऑफर लगाई हुई है, अप टू 50% हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। विजिट करें और अच्छी प्राइसेस में अच्छी अप्लायंसेस दें। अल-फतेह इलेक्ट्रॉनिक्स की जानिब से सेल 11 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक जारी रहेगी। कैमरा मैन असद के साथ इब्राहिम क्रशी, सिटी 42 लाहौर। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजिस्ट के एहतमाम पर कॉन्टिनेंटल होटल में 3 रोज़ा बैनुल-अक़वामी पैथोलॉजी एक्सपो का इनेकाद किया गया। ग्रासा लेबॉर्ट्री सप्लाइज ने अपना स्टॉल सजाया। ग्रासा लेबॉर्ट्री सप्लाइज पाकिस्तान में लेबॉर्ट्री का जदीद आलात फराहम करती है।
एक्सपो में ग्रासा लेबॉर्ट्री सप्लाईज ने अपने जदीद तरीन आलात, डिजिटल पैथोलॉजी के टूल्स और मसनूई जहानत से चलने वाले लेबॉर्ट्री निज़ाम पेश किए। सीईओ ग्रासा लेबॉर्ट्री सप्लाईज गुलाम हुसैन का कहना है कि 3 रोजा एक्सपो बहुत बेहतरीन रहा। बैनुल अक़वामी सप्लायर से मिलने का मौका मिला और लोगों का रद्द अमल बेहतरीन था। हमारी फील्ड की जो ये सबसे बड़ी एसोसिएशन है जिसका नाम पैप है, तो ये 46 इनकी जो है वो कॉन्फ्रेंस थी और हमने यहाँ पे जो है एज ए एग्जीबिटर स्टॉल लगाया था। गुड रिस्पांस था, इट वाज वेरी गुड एंड वी आर वेरी मच हैप्पी। ग्रासा लेबॉर्ट्री सप्लाईज के स्टॉल्स पर क़ौमी और बैनुल अक़वामी सारिफीन ने विजिट किया। स्टॉल में पैथोलॉजी के शोबे में बैनुल अक़वामी ताआवन, तहकीक और तकनीकी तरक्की को फ़रोग़ देने पर बातचीत हुई। ब्रांच मैनेजर कराची ऑफिस आमिर अफजल का कहना था कि कंपनी के प्रोडक्ट जदीद तरीन है। हमारा मकसद सारिफीन को बेहतरीन अशिया फराहम करना है। हमारे पास तमाम क्लिनिकल लेबॉर्ट्री के इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं और हमारा हेड ऑफिस लाहौर में है, तो मेरे ख्याल से हमारा ये एक अच्छा इवेंट रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट भी अगर कोई लाहौर या पूरे पाकिस्तान में कहीं भी ऐसे इवेंट होंगे तो ग्रासा लेबॉर्ट्री जो है वो इंशाल्लाह उस पर पार्टिसिपेट करेगी। ग्रासा लेबॉर्ट्री सप्लाईज की जदीद टेक्नोलॉजी ने पैथोलॉजी के मैदान में इंकलाब बर्पा किया है। एक्सपो ने पाकिस्तान में साइंसी तरक्की और सेहत के शोबे में बेहतरी के नए दरवाजे खोले हैं। कैमरामैन जमील के हमरा फरीहा बतूल, सिटी 42। महकमा इत्तलात और सकाफत पंजाब के ज़ेर तमाम अलहमरा में पंजाब मैथ्स इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल के दूसरे रोज़ की तक़रीबात। फेस्टिवल अपने तख्लीकी जोश व खरोश, सकाफती रंगों और अवामी उमंगों की वजह से दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन गया। फेस्टिवल में कहीं स्टेज पर जिंदा कहानियाँ सांस ले रही हैं, कहीं मकालमों की सूरत फ़िक्री रोशनी बिखर रही है, तो कहीं वर्कशॉप्स में नौजवान अपने ख्वाबों को फ़न की शक्ल दे रहे हैं। फेस्टिवल के दूसरे रोज़ मैथ्स फाउंडेशन की पेशकश दी ज़ीरो लाइन अजोका थिएटर की तरफ से खेल ये औरतें कहाँ गईं, चीन की लैंड स्टेजिंग थिएटर कंपनी की जानिब से शानदार खेल पेश किया गया। देखने वालों को हर कहानी अपनी ही कहानी लगी। आर्टिस्टों के हर एक्ट पर नाज़रीन की तरफ से दाद दी गई। फेस्टिवल की मकबूलियत बुलंदियों को छू चुकी है। अवाम की बड़ी तादाद परफॉर्मेंसेस से महजूज हो रही है। दूसरी जानिब हैंडीक्राफ्ट्स की नुमाइश मकामी खानों के जायके और सकाफती सरगर्मियों का हिस्सा बनकर अपनी जड़ों से जुड़ रही है। लाहौर जो कभी मुगलों का दिल कहलाता था, आज भी अपने अंदर वही तहजीब, वही शान और तारीखी खुशबू समेटे हुए है। दिल्ली गेट के अंदर वाक़िया शाही हमाम मुगलिया फ़न तामीर का एक लाजवाब शाहकार जो आज भी अपनी शान और शौकत की गवाही देता नजर आता है। लाहौर की गलियों में कदम रखें तो यूं लगता है जैसे वक्त रुक सा गया हो, और जब बात दिल्ली गेट के अंदर वाक़े शाही हमाम की हो तो लगता है जैसे तारीख ने खुद यहाँ बसेरा कर रखा हो। 4 सदियों पुरानी ये इमारत आज भी मुगलों के ज़ोक़े तामीर और अंदाज़े जिंदगी की अक्कासी करती है। 1635 में नवाब वजीर खान ने बादशाह शाहजहां की दौरे हुकूमत में ये शाहकार तमीर करवाया। ये सिर्फ एक हमाम नहीं बल्कि एक मुकम्मल रिलैक्सेशन सेंटर था, जहाँ बादशाह, अमरा और मुसाफिर गुसल के साथ आराम भी करते थे। 3 मुख्तलिफ दर्जा हरारत के पानी वाले कमरे, ठंडे, नीम गर्म और गर्म पानी का निजाम उस वक्त के इंजीनियरिंग का आला नमूना था। It's amazing, the design, the art, it's all amazing. I love it here. It's like how Lahore should be. एक को मैं लाहौर का पल बढ़ूं और मुझे अफसोस है कितने पहले किया है और किला भी देखा, मस्जिद किले की शाही मामला पैदा। एक तो जो एफर्ट की गई है इसको उसको एक्सेप्ट करें कि अमेजिंग एफर्ट, और आपने हमें वापस ले गए जो हमारी एक हिस्ट्री है। आज ये जगह स्याहों की तवज्जो का मरकज है, जहाँ रोशनी, तस्वीरें और कहानियां सब मिलकर माजी को हाल में बदल देती हैं। वक्त गुजर गया मगर तारीख अब भी यहाँ पर जिंदा है। शाही हमाम वो जगह है जहाँ बादशाह गुसल किया करते थे और अब सयाह तहरीक के दरिया में नहाते हैं। ये सिर्फ लाहौर का नहीं बल्कि तहजीब फारसो हिंद का विरसा है, और यही वो विरसा है जो लाहौर को जिंदा दिल शहर बनाता है, जहाँ पर माजी भी हाल के साथ चलता है। कैमरामैन मिराज के साथ कलीम अख्तर, सिटी 42, लाहौर। मसलन चुंगी में मौसम सरमा की आमद के साथ शहरियों का मछली की दुकानों का रुख। शहरियों का फ्राई मछली से लुत्फानंदोज होने के लिए फिश पॉइंट पर रश। सर्दी में मसालों वाली मछली हर किसी की पहली तरजीह होती है। शहरियों की जानिब से ये कहा गया, शहरी कैसे लुत्फानंदोज हो रहे हैं बताएंगे इब्राहिम कुरैशी। जी इब्राहिम।
بالکल इस वक्त मौजूद हूँ मुजंग चुंगी पे। अगर बात कर ली जाए मौसम की तो मौसम जो है वो इंतहाई सुहाना है, और जबकि इतवार का दिन है और लाहौरी जो है वो खाए पिए बगैर कैसे रह सकते हैं। इस वक्त लाहौर जो है वो एक मशहूर मछली पॉइंट पर जो है वो मौजूद है। उनसे जानते हैं कि उनका आज का दिन जो है वो कैसा गुजरा है, मौसम कैसा है और मछली को कितना एंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथ एक बड़ी क्यूट सी फैमिली मौजूद है, उनसे पूछते हैं। सर मुझे बताएं कि कितने सालों से जो है वो मछली खाने आ रहे हैं और आज का दिन है, इतवार का दिन है और मौसम में काफ़ी ज़्यादा तब्दीली आई है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि मछली का मज़ा जो है वो दुबाला हो गया होगा? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसी ग्रॉसरी करने निकले थे तो बेगम कहती फ़िश खानी है, तो यहाँ पे आ रहे हैं हम कोई 10-15 साल से ना, तो वेदर जस्ट स्टार्ट ही हुआ था तो हमने कहा चलो फ़िश ट्राई करते हैं। और वैसे भी गुड प्रोटीन सोर्स है, थोड़ा सा काफ़ी अरसे बाद एक्सरसाइज दोबारा शुरू की थी तो सोचा कि अच्छी कोई हाइजेनिक फूड से स्टार्ट लेना चाहिए। मछली खाने के लिए आ गए। मछली हाई प्रोटीन डाइट है तो सोचा सर्दियों का आगाज़ और अपनी एक्सरसाइज का स्टार्ट फ़िश से करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब माशाल्लाह इतना अच्छा मौसम है और मौसम को जो आज आपका दिन सबसे पहले बताएं कैसा गुजरा, और मछली की मुनासबत से आज जो भाई आपको लेकर आए हैं यहाँ पर बैठ के दिन कैसा हो? फर्स्ट ऑफ ऑल संडे है, संडे तो अच्छा ही गुजरता है और फैमिली के साथ हो वैसे ही बहुत अच्छा गुजरता है। और सर्दी का स्टार्ट तो फिश से ना किया तो फिर तो बेकार है आपकी लाइफ, तो इसलिए हमने सोचा कि आज संडे भी है और आज स्टार्ट करते हैं फिश के साथ। और ये हमारा फेवरेट प्लेस है जहाँ पे हम बड़े अरसे से और बड़ी दूर से आते हैं यहाँ पे फिश खाने के लिए। यहाँ की हमें पसंद है फिश। पसंद है फिश। मेरे साथ जो है वो होटल मालिक भी मौजूद हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। काफ़ी क्यूट फैमिली मौजूद थी, उनका यही कहना था कि संडे का रोज़ हो और मछली पॉइंट हो तो हम किस तरह जो है वो नहीं आ सकते। मुझे आप बताएं कि इतवार के रोज़ जो है वो कितना लोगों का रश होता है, और जबकि मौसम में तब्दीली आ गई है तो अब कितना रश होता है? जैसे ही मौसम की तब्दीली आती है, आपको पता है लाहौरिया नंबर 1 पर खाने पीने में। मौसम चेंज होता है, हर आदमी की हर इंसान की ख्वाहिश होती है मछली खाएं, ऊपर से सर्दी को दूर करती है। और ये हमारे बड़ों का काम है, 1935 का काम है। बेसन वाली मछली होती है, रोहू मछली, और सरसों के ऑयल में तैयार की जाती है। सरसों के ऑयल में तैयार की हुई मछली हो, इतवार का रोज़ हो, और कैसे जो है वो तमाम बेगमात अपने शोरों को यहाँ पर लाते हुए जो है वो कहते हैं उसे रोक सकती हैं, बल्कि वो ज़िद करती हैं कि हम जो है वो यहाँ पर आएँ। बच्चे ज़िद करते हैं कि यहाँ पर आएँ, मछली खाएँ, क्योंकि इतवार के रोज़। और सबसे पहली बात ये कि मौसम अच्छा होने के साथ साथ मछली का मज़ा जो है वो दुबाला हो जाता है। जी इब्राहिम कुरैशी, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।